हम लोग पहले से ही समय से पीछे चल रहे हैं। शैलेश जैन साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने साथियों के साथ शीघ्रता से अंदर आए। तो नहीं किसी के लिए रिजर्व नहीं है ना। मेरे सभी आदरणीय साथी, all again to join us, and with this I extend my warm welcome on behalf of MNIT Jaipur as we join together to celebrate Alumni Day 2015. On this auspicious day, we also take privilege to felicitate our Silver Jubilee 1990 pass out batch and Golden Jubilee 1965 entry batch. Now to start the program, may I request our distinguished members and guests to come to the dais. On the dais, I would request Professor I.K. Bhatt, Professor Dilip Sharma, Engineer Ashutosh Dikshit, Engineer Shrikant Gupta, Professor Dharmendra Bulchandani, Engineer Prasanna Maheshwari, and Dr. Pavan Kalla. Sir, please. And so I request Professor Bulchandani to also welcome Engineer Ashutosh Dikshit ji. Now may I request Professor Dilip Sharma, Dean Student Welfare and Alumni Affairs, to deliver his welcome address and start the program. Friends, it's time to say goodbye to 2015. This year might have been similar to other years for many of us, but for 1990 pass out batch, this year has a great significance in their life as they have completed 25 years of graduation. These 25 years might have involved a lot of ups and downs in your life, but now you are what you intended to be. And I'm sure in this journey, MNIT, or earlier which was known as MREC, has played a vital role. I can see the nostalgia in your faces after coming to this institute after 25 years. So I again welcome 1990 batch. Though presently we are felicitating 90 batch right now, but we have other activities also planned for the entire day. And since it's an alumni day, I also welcome the other alumni along with 1990 batch. So friends, on my personal behalf and on behalf of MNIT, I welcome all of you and your family to your alma mater. As you've grown, the institute has also undergone a lot of changes. You know, when you were a student, this institute was an affiliated college of Rajasthan University. Now,
It's an autonomous institute of national importance. In 1990s, the total student strength was about 1,500 students, which is now more than 5,000 students are residing in this campus. From 5 engineering disciplines to more than a dozen departments, from students living in a 90-seated dormitory to hostels of 1,000 single-seater rooms capacity. We've got a renovated and a much bigger air-conditioned library. The institute is having a high-speed 2 Gbps line with a Wi-Fi enabled campus. More than 1,000 students are undergoing masters and PhD degrees. You can see the number of students pursuing masters and PhD degrees in the institute are more than the students those who are graduating in that period. We have newly constructed administrative block which houses entire administrative setup in one building, which is known as the Prabha Bhavan. I would be requesting all of you to please have a visit of that building. It's a fabulous building which you won't have seen anywhere in any educational institutions, I'm sure. We've got world-class laboratories like Material Research Center, Tribology Lab, etc., which are even better than at several IITs or even world-class level. Towards your left, if you see a huge building coming over there, it's a Vivekanand Lecture Hall 3-acre complex which can house more than 6,500 students in one go, which is the largest in the Rajasthan. So I'm sure you'll be visiting this building as well after this function is over. To tell you, the institute has gone so vibrant that we are having almost one activity at least every day. Either it may be a conference, a symposia, training, expert lecture, etc., etc., etc. And as a result of all these, MNIT has been awarded by several agencies. To name few, ABP News National Education Award Jury awarded MNIT as an Outstanding Engineering Institute West for this year. Edu Leaders and Rand Corporation USA has ranked MNIT as top among the top 20 engineering colleges, which includes all IITs and NITs. Friends, all this had been possible due to able guidance of Professor I.K. Bhatt and other senior professors and directors which were there. So we owe them a regard that these people have come to our institute and made our institute brought the institute at such a high level. Without wasting much of our time, now I would like to conclude by wishing all of you a very happy new year and all the success in your future. Thank you. Alumni who truly love and faithfully support their institution and are here for this cause today as well. We always look forward for your support, sir. Now, may I request Engineer Shrikant Gupta, who is General Secretary for MNIT JAG, Jaipur Alumni Association, to deliver his address. Thank you, sir. सम्मानीय आई.के. भट्ट साहब, आशुतोष दीक्षित साहब, दिलीप शर्मा जी, मूलचंदानी जी, पवन कल्ला जी, प्रसन्ना महेश्वरी जी, सभी उपस्थित मेरे अग्रज एवं अनुज मालवियंस, उनके परिवारजन एवं प्रेस से आए सभी प्रतिनिधि, सबसे पहले मैं 1990 पास आउट बैच एवं 65 एंट्री बैच जिसका गोल्डन जुबली है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनके परिवारजनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। 25 साल बाद जब हम मिलते हैं
तो एक अलग ही माहौल रहता है। सभी लोग, कोई किस जगह होता है, कोई कहाँ होता है, और जब 25 साल बाद मिलता है तो उनके परिवार और उन लोगों में आपस में इतना अपूर्वता और खुशी होती है कि वो देखते नहीं बनती। मैं MNIT एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से सभी को बताना चाहता हूं कि एसोसिएशन पिछले 15 सालों से काम कर रही है, विभिन्न कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हर साल सिल्वर जुबली फेलिस्टेशन हम करते आ रहे थे। पिछले 2 साल से एंट्री बैच का गोल्डन जुबली भी हमने शुरू किया, लेकिन ये पहली बार है कि जब इंस्टीट्यूट, एलुमनी एसोसिएशन, एलुमनाइज और बैच सब में जबरदस्त हार्मनी है, परफेक्ट हार्मनी है। सारे एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक बार हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, एसोसिएशन के लिए ताली। इस बार डायरेक्टर साहब ने खुले दिल से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में पूरा सहयोग किया। हमने अभी कुछ समय पहले सितंबर में ग्लोबल एलुमनी मीट आयोजित किया था। आपको जानकर हर्ष होगा, इंडिया के हर शहर से और करीब 17 देशों से पुराने एलुमनाई हर बैच से यहाँ आए थे। अभी कुछ दिनों पहले कुछ मेरे साथी हैं जो IITian हैं, IIT से MTech किया है, कुछ के बच्चे हैं जो IIT में पढ़ रहे हैं, उनसे बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में पुराने एलुमनाइज का इतना बढ़िया स्वागत, इतना अच्छा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। ये सिर्फ MNIT में होता है, ओनली इस इंस्टीट्यूट में होता है, इस एलुमनी के द्वारा होता है। कार्यक्रम और भी हैं जो हम हर साल करते हैं। एक और बड़ा कार्यक्रम जो एलुमनी एसोसिएशन आयोजित करती है वो है अडवाणी मेमोरियल टूर्नामेंट बास्केटबॉल का। जो पुराने एलुमनाई जो जानते हैं कि हमारे इस टूर्नामेंट से कितना लगाव रहा है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर अडवाणी जी की मेमोरी में ये जो हम टूर्नामेंट करते हैं, इससे हम लोग कितने जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ अरसे से इसमें गैप आ गया था, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर हमारे इंस्टीट्यूट ने ये आयोजित किया था और इस बार हम इंडिया की टॉप टीमें और कुछ विदेश की टीमें भी इसमें बुला रहे हैं और ये शानदार तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। मैं पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1990 बैच को सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बैच दोनों को ही धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. It's indeed MNIT family coming together and working together. We thank you all for your support and cooperation. Now, may I request Engineer Ashutosh, Engineer Prasann Maheshwari ji, who is batch coordinator for 1990 batch, to give his welcome address. मंच पर विराजे आदरणीय प्रोफेसर IK भट्ट साहब, प्रोफेसर दिलीप शर्मा साहब, प्रोफेसर भूलचंदानी, डॉक्टर पवन कल्ला, आशुतोष दीक्षित बॉस, श्रीकांत गुप्ता बॉस, सभा स्थल पर विराजमान मेरे आदरणीय गुरुजन,
और प्यारे साथियों एवं उनके परिवारजन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एलुमनाई डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में MNIT द्वारा सम्मानित होने के अवसर पर मैं और रजत जयंती बैच 1986-90 के मेरे सभी साथी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से संस्थान के आदरणीय प्रबंधन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार इसलिए भी कि आपके इस प्रयास से वर्षों बाद हमें एक बार फिर हमारे आदरणीय गुरुओं से मिलने का अवसर मिला, हमारे वर्षों से बिछड़े साथियों से मिलने का अवसर मिला। आज संस्थान परिसर से जुड़ी हमारी मधुर यादें फिर से जीवंत हो उठी हैं और पिछले 25 वर्षों में जो प्रगति संस्थान ने की है, जिसका जिक्र अभी दिलीप शर्मा साहब ने किया, उसे देखकर हम अभिभूत हैं। अभी कल की सी ही बात लगती है जब सन 1986 में अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए भारत के प्रत्येक राज्य और कुछ अन्य देशों से लगभग 350 विद्यार्थी तत्कालीन मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के इस प्रांगण में इकट्ठे हुए और अपने तथा अपने परिवार के सपनों को साकार करने में जुट गए। इसी परिसर में हमने विभिन्न प्रांतों और मतों की विशिष्टताओं को जाना, समझा और अपने 4-4.5 वर्षों के प्रवास में हम सभी MREC नाम के इस सूत्र से जीवन पर्यंत के लिए बंध गए। किताबी ज्ञान के अलावा जो समझ, आत्मविश्वास और सुदृढ़ आधार हमें यहाँ मिला, उसी का परिणाम है कि आज हमारे बैच के साथी भारत के लगभग सभी प्रांतों में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, देश और राज्यों के शीर्षस्थ सार्वजनिक उपक्रमों, अर्ध सरकारी उपक्रमों, शीर्ष निजी उपक्रमों में तो हमारे इस बैच के साथी अपनी कर्मठता से देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभा ही रहे हैं। स्व उद्यमी के रूप में भी हमारे कई साथियों ने बहुत प्रगति की है और लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी किया है। इसके अलावा सामाजिक सरोकार से भी हमारे साथी अछूते नहीं रहे हैं और कुछ साथियों ने अपनी विशिष्ट छाप समाज सेवा के क्षेत्र में छोड़ी है। मेरे कुछ साथियों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। श्री अनुज गुप्ता, मैकेनिकल बैच के हमारे साथी, जिन्होंने 1993 से लेकर 2010 तक किसी प्रकार का जॉब नहीं किया, सिर्फ सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं में लगे रहे और सन्यासियों के समान जीवन व्यतीत करते हुए तरुतल वासा करतल भिक्षा के रूप में उन्होंने कार्य किया। इस दौरान कोई उनके पास स्थायी निवास भी नहीं था और मजदूरों के बीच रहकर उनके लिए उन्होंने काम किया। हमारे साथी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हम उन्हें इस कार्य के लिए बधाई देते हैं। हमारे अन्य साथी श्री विनोद तिवारी बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं पिछले 25 सालों से और जो वंचित बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं लगातार। श्री कमल गोयल और श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता ने रक्तदान के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। कमल जी अब तक 40 बार रक्तदान कर चुके हैं और इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए एक NGO के माध्यम से प्रयासरत हैं। सूर्य प्रकाश गुप्ता हमारे हर दिल अजीज साथी, वे भी 25 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं और हमारे एलुमनाई के जो रक्तदान शिविर होते हैं उसमें भी वे आगे रहते हैं। अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बैच के साथियों के होनहारों ने भी शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दर्शाई है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने परोक्ष रूप से संस्थान का नाम इस प्रकार ऊंचा किया है। मैं रिसेंट जो उपलब्धि हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे बैच के मैकेनिकल के साथी श्री महेश गोयल के सुपुत्र पवन गोयल ने इसी माह दक्षिण कोरिया सियोल में आयोजित IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुल 43 देशों के 250 प्रतियोगियों के बीच उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और यही पिछले साल उनकी सुपुत्री सृष्टि गोयल ने भी IIT JEE में 54th रैंक हासिल की और अभी IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। मान्यवर,
हमने इस संस्थान से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, अब आज 25 वर्ष के बाद हमें उसके प्रतिदान का अवसर मिला है। पे बैक का समय हमारे लिए है और हमारे कुछ कर्मठ साथी एलुमनाई एसोसिएशन के साथ जुड़कर उसे सुदृढ़ करने के कार्य में एक जुनून लिए हुए कार्य कर रहे हैं और एलुमनाई एसोसिएशन की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, ताकि कॉलेज और एलुमनाई प्रबंधन मिलकर छात्रों के लिए और हमारे एलुमनाई परिवार के लिए, एलुमनाई के परिवारों के लिए कुछ अच्छा, कुछ सार्थक कर सके। आशा है उनके प्रयास रंग लाएंगे। काल के क्रूर हाथों ने हमारे कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली मित्रों श्री अरविंद सक्सेना, श्री राजन गौतम और श्री सुमित जैन को हमसे छीन लिया है। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे लिए 3 दिन का यहाँ प्रवास है, हमारे बच्चों जैसे जो जूनियर्स हैं, अभी MNIT के स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे यहाँ के प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए। मैं अपने साथियों की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये करतुल धनिया आपको बता रही है कि उन्होंने सच में कितना कार्य किया है। स्वर्ण जयंती बैच 1965 के हमारे आदरणीय साथी यहाँ अभी उपस्थित नहीं हैं, फिर भी इस मंच के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों की ओर से उन सभी को बधाई देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 25 वर्ष बाद जब हम फिर यहाँ स्वर्ण जयंती के लिए उपस्थित हों तो वे लोग भी हीरक जयंती अपने कैरियर के मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहें।